Okay, so कल हम कर रहे थे problem 1. So I'll go for this problem again. इसका एक part हमने कर लिया था, but I'll quickly make it again for anyone who's not been able to grab like how we chose the sketching plane and how we got the orientation. I hope everyone remembers that there are two components and we need to make them with just two extrudes. Okay, extrude 1, extrude 2. Let's see how we can do that. And I hope everyone remembers that why we are going for this component first and this component second. Reason being, यहाँ पे ये parent component रहेगा and the other one will behave as a child component because हमारे पास ये 100 units की length यहाँ पे available नहीं है क्योंकि यहाँ पे 30 30 30 90 नीचे हो गया 5 इधर 5 उधर 10 so it is 100 units but we do not want this dimension to appear in our part. We just want to dimension 5 units. So how do we approach this problem? We'll make this component on the right plane. So I'll just go and set up the working directory. So now Ayush, आपका जो naming का issue है, you just name it out here only. ठीक है? Let's say we name it out like Ayush. And we go for millimeters, Newton second part solid. We go for it. And then we first choose the right plane. We go to extrude. We go to sketch setup. In sketch setup may we have the sketching plane as the right plane, which is basically this one. And we have the top plane as the reference. Reference top plane है, उसकी normal y direction में है. We want the YZ plane is the sketching plane. We want the Y to be at the top for us to sketch it in a convenient manner. So it was on the left. I am placing it at the top. So you now see कि Y top पे आएगा when I orient it in this direction. So you can see Y अभी top पे आ रहा है. So let's sketch this one out. I'm going a little quick because we have actually attempted the first component yesterday only. तो उसमें I hope सबको easy होगा. So I've created my rough sketch and I'll mirror this half component or half sketch on the other side. For that, I need a center line. Okay. Now I have drawn the center line, but first I'll dimension everything out. I'll get the exact dimensions for everything. यहाँ पे एक dimension है, यहाँ पे भी एक dimension है, यहाँ पे एक dimension है. And now there is one dimension which is between this thing 30 units का but मेरे पास half circle है so it will appear as 15 अगर मैंने सब correct dimensioning की but what I prefer to do is मैं यहीं पे ही पूरी dimension देने की कोशिश करूंगा not just the half dimension but the complete one. उसको कैसे देते हैं for that we need a center line. ठीक है center line के बिना नहीं होगा जो हमने पहले draw कर रखी है. So what I'll do is I've clicked on dimension. I'll go to this corner or this vertex, click on this one, and then click on the center line, and then again click back on this vertex, and then click the middle mouse button. तो इससे आपको उस साइड का भी डायमेंशन इसी के अंदर एक स्ट्रोक में मिल जाता है. ठीक है एक क्लिक के अंदर आपको सब कुछ मिल गया. अदरवाइज आप हाफ डायमेंशन स्पेसिफाई करते फिर बाद में जाके उसे रिप्लेस करके कंप्लीट डायमेंशन शो करते. Now we're still left with two weak dimensions. I hope everyone remembers. मैंने ये weak dimensions eliminate करने का तरीका क्या बताया कि आप इसको hold करो, select करने के बाद modify पे जाओ, and you basically tweak it a little bit and see how is it behaving. So you can see this is behaving in such a fashion that this horizontal line is not perpendicular to this arc. But when we go to the actual drawing, you can see that this horizontal line here is actually perpendicular to this arc at this location. And the reason for it being perpendicular at this location and as well as this location, यहाँ पे भी ये arc इस line को perpendicular है. Reason ये है कि ये quarter circle है. वो quarter circle हमें कहाँ से पता लगता है? ये vertex ये basically center है उस circle का और ये यहाँ से अगर straight line draw करें इस vertex को यहाँ touch कर रहा है. So we get the idea that this is basically a quarter circle and it is tangent, the horizontal line and the arc, the vertical line and the arc. So let's do that. So if I come back here and if I cancel it out and if I give perpendicular condition to this arc and this line, and then we again have one more weak dimension, I'll give a perpendicular condition to this arc and this line. So we have eliminated all the weak dimensions.
And now I'll basically, so you can also see when I did that, अगर यहाँ से एक hypothetical weak line like center line draw करें, you can see ये सेंटर लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट से भी पास करती है बिकॉज इट्स अ क्वार्टर सर्कल. अगर मैं इसको रोटेट करके नीचे चेक करूं, यू कैन सी दैट ये पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का और ये वर्टेक्स यहाँ से पास कर रही है. सो दिस इज व्हाट वी वांटेड. और इसको ये जस्ट चेक करने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले बट जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन. और ये यहाँ पे विजिबल है, you can see this thing happening at this location. So coming back, now once we have eliminated all the weak dimensions, we basically modify everything and we lock scale and select one of the dimensions, give it a value, and then wait, okay, and then let's adjust everything now. So this is 30, this is I think 15, and this is I think this is 35. Yeah, this is 35. So now once I have all the dimensions, let's mirror this one out. Let's mirror it above the center line. So for mirroring, what we need to do is we need to select everything that we need to mirror. And then we go to this icon called mirror and then select it and select the center line about which everything will be mirrored. तो इसको select करते हैं. So you can see as and when I do that, सब mirror हो गया और आपकी geometry complete हो गई. But अभी यहाँ पे एक छोटी सी हमें modification करनी होगी. The modification is we have a dimension of 30 units that is being displayed in this drawing, जो यहाँ पे अभी shown नहीं हो रही. And it is happening because we have this constraint here, which is basically about symmetry. So we can delete this constraint and then we can specify this dimension. So I can specify this dimension here. This is of 30 units. And now I can also specify this 15. This 15 and this 15, both on the left and the right, they are one and the same thing. So I can put an equality constraint on these lines. So I'll get a complete figure drawn to proper scale. Now the length it needs to be extruded is up to 30 units. So let's draw like extrude it out. So we go to 30 units. यहाँ पे ऊपर डेप्थ ब्लाइंड पे ही स्पेसिफाई कर रहे हैं 30 यूनिट्स एंड वी जस्ट स्पेसिफाइड क्लिक ओके. यू गो टू स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन एंड एज व्हेन यू सी दिस वन, यहाँ पे आपका पार्ट इस ओरिएंटेशन के साथ काफी हद तक मैच कर रहा है. थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन है, विल सी व्हाई इट इज हैपनिंग. सो लेट्स सेव इट आउट वंस. ठीक है, यहाँ पे सेव किया. वी हैव दिस फाइल नेम एज ayush.prt. we'll look at it at a later stage but just save it once. So we click OK. Now, the second part, how do we go about the second part? So this is the component or the part that I want to like model now. So anyone who would like to take a guess, where should I construct this part? Which plane should I choose? If this has been constructed on the right plane, ये कौन से plane पे construct करें? So top Top plane. plane. We take the top plane. Okay, so we go to extrude, we go to placement, we go to, I would say, top plane. Now, sorry, sketch setup. We go to top plane. We have the reference as the right plane. Right plane is this one, which is the green one. Right plane की normal है x. X वो कह रहा है कि मैं right direction में रखूंगा. So it is a choice of convenience. For me, it would be convenient not to have it on the right. ठीक है? For you, it might be convenient to keep it on the right. Where should I be? मेरे को कहाँ पे ज़्यादा convenience मिलेगी आपके according? If I look at this part, अगर इसे draw out करना है ये वाला, राइट पे भी बन जाएगा, प्रॉब्लम कोई नहीं है. So top maybe. Left, sir. एक्स को देखो, एक्स कहाँ पे करें? Down. डाउन कर लो, थोड़ा इजी रहेगा. इट्स अबाउट कन्वीनियंस. इफ आई पुट इट एट द बॉटम, इफ आई स्केच इट एंड गिव इट इन ओरिएंटेशन, आई होप यू गेट माय आइडिया. लाइक यहाँ से थोड़ा इसको ड्रॉ आउट करना इजी लग रहा है मेरे को बाय लुकिंग एट दिस फिगर. ठीक है, जो भी इसकी आवाज बहुत दबी हुई है. हु स्पीकिंग? आई कांट हियर यू हियर. मैं कह रहा था कि रेफरेंस प्लेन का क्या काम हो रहा है इसमें. रेफरेंस प्लेन का काम क्या है? रेफरेंस प्लेन आपका कौन सा प्लेन है? राइट प्लेन. राइट प्लेन कौन सा है? यहाँ से अगर राइट प्लेन सिलेक्ट करें, ये समझ आ रही है कि ये वाला प्लेन राइट प्लेन है. आकाश आपकी आवाज दब जाती है. हेलो, सर एम आई ऑडिबल? हाँ अब हो. यहाँ पे ये राइट प्लेन है, कंफर्म है. यस सर. जेड वाई. राइट प्लेन की नॉर्मल कौन सी है? एक्स. यस सर. एक्स कहाँ पॉइंट कर रही है?
बॉटम। बॉटम। अगर मैं स्केच सेटअप में जाऊं, इसको बॉटम से मैं अब टॉप कर देता हूं, अब एक्स कहाँ पॉइंट कर रहा है? टॉप। अब मैं अगर लेफ्ट बोलूं तो लेफ्ट से एक्स कहाँ पॉइंट कर रहा है? ऐसे लेफ्ट में करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही राइट पे करो तो राइट पे पॉइंट कर रहा है। तो अभी रेफरेंस प्लेन लेफ्ट। से आपकी थोड़ी कन्वीनियंस हो जाती है स्केचिंग कैसे करनी है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं बॉटम पे रख के मुझे फायदा, क्योंकि मैंने अपनी सारी कंस्ट्रक्शन इस एरिया में करनी है, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में। तो मैं कहता हूँ कि इसको बॉटम पे रखते हैं एक्स को, और फिर अपनी स्केचिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, सो लेट्स स्केच इट आउट एट द बॉटम। नाउ यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपको कुछ रेफरेंसेस चाहिए। रेफरेंसेस इन द सेंस, मुझे ये 5 मिनट्स की डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है। हाउ डू आई स्पेसिफाई इट? यहाँ पे बेसिकली इस एज से ये डायमेंशन 5 यूनिट्स मिलेगी। सो कैन आई टेक दिस एज अ रेफरेंस? यहाँ पे एक ऑप्शन है, there is this icon called references. I selected it. I'll just come and you can see यहाँ पे जहाँ पे भी आप किसी edge को पकड़ोगे ना, you do not need to click on the mouse. You just need to hover over it and you can see वो edge highlighted हो जाता है. If I do a right click on this, sorry left click, यहाँ पे ये एक reference दे देता है, because ये part हम already construct कर चुके हैं, उसे पता है इसकी dimensioning कैसी है, horizontal है, vertical है, तो ये easy कर देता है. So you can specify references. ये आपको help करती हैं. You can use as many references as you want as per your convenience. So I took 2 references. Now let's have a look at this geometry and then we'll go for the construction. So I need this, I'll construct this part, this line, this edge, this edge, this edge, this edge, this edge, and here. So what we will do is we'll take somehow this edge, I will say, do we have, let's give it, or it may or may not be. So I'll avoid the equality constraint. वहाँ पे equality constraint आ रहा था. I will try to avoid as many constraints as possible. ठीक है? Let's keep it here. Let's take a circle. Easier again. Let's delete the extra portions. We do not need them. ठीक है? Now we need to dimension them out. ये 16 है, ये 12 है, ये 10 है, and this is 40. Okay, let's dimension them. So this is 40. This is 12. This is also specified as 10, and this is specified something, and this is specified something. Now we have a weak dimension. What is this weak dimension doing? We need to click on modify and let's tweak it. Okay. Okay, this weak dimension is coming because मैंने वो 5 units का dimension specify नहीं किया, which is basically यहाँ पे, ठीक है? ये 5 units specify करना जरूरी है. So I'll go to dimension, I'll select this vertex and I have a reference now. So I'll take this reference, select it here. So I have eliminated all the weak dimensions. इस रफ से जितना भी रफ स्केच है इसे सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्ट करने के बाद इसे मिरर करना है. सो मिरर करने के लिए आपको सेंटर लाइन की जरूरत होती है, जो मैंने ड्रॉ नहीं की, तो अभी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. Alright, so यहाँ से अब सब कुछ select करते हैं. We go to this option of mirror and we go to this option of center line and you can see as and when we do that आपको सब मिल गया. But यहाँ पे आपको एक weak dimension आ रही है. फिर modify पे जाते हैं. Let's see why we are getting this weak dimension. एक minute. So let's tweak it. We are being a little too sensitive, I think. Okay, so ये ऊपर नीचे मूव कर पा रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. सो लेट्स से ये यहाँ पे मूव कर रहा है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गिव अ कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट टू दिस vertex and this line. So there is this dimension of 11.5. Let's delete this one. Yeah. So आपको आपकी weak dimensions eliminate कर दी हमने, ठीक है? But there is one dimension. Okay. वर्टिकल लाइन का वर्टिकल लाइन और डॉटेड लाइन का वो परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट दे देते तो वर्टिकल लाइन और उसका, हाँ वो भी दे सकते हो. देयर आर मेनी वेज बट इट्स बेटर. वो परपेंडिकुलर देने से भी प्रॉब्लम एलिमिनेट नहीं होती. अगर यहाँ पे आपने ये कंस्ट्रेंट है, आप कह रहे हो कि ये लाइन का इसके साथ परपेंडिकुलर मैंने दे दिया, वीक डायमेंशन तो चली गई, पर क्या ये करेक्ट है?
नहीं सर, इसीलिए नहीं। करेक्ट नहीं है क्योंकि पॉइंट ये है कि ये नीचे शिफ्ट कर गया, ये वर्टेक्स को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हमें देनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर वी गो फॉर अ कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट एंड गिव दिस डायमेंशन। ये 11.85 की डायमेंशन की हमें जरूरत नहीं है, इसे डिलीट करते हैं, उसको ऊपर शिफ्ट हो जाता है, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। ठीक है, सो वो कंस्ट्रेंट देने से आपको फायदा नहीं मिल रहा। So we select everything, we go to modify, and we lock scale. And what is this dimension? I think this is 40. So we click OK, and then I think अभी एक बार read करना पड़ेगा. So this is 12, this is 10, this is 16, and that is 25. So this is 12, this is 10, this is 16, and this is 5, and this is 25. Okay, so let's click OK, and let's orient it, and we just need it to be 60 units. So we click OK. So this is how you get a look at this part once it's been constructed. आपको जो dimensions specified है आपने सारी complete की हैं. You did not specify 100, you just specified 5, and you were able to complete this part. So anyone having any doubts, like we have just completed the problem in 2 extrudes, minimal number of steps. So किसी को कोई doubt? सर उसमें हमने रेफरेंस लाइंस क्यों सिलेक्ट की थी, ये समझ नहीं आया। रेफरेंस लाइन से आपको आइडिया लग जाता है कि वो डायमेंशन आप करेक्टली स्पेसिफाई कर रहे हो कि नहीं। सो ये 5 की डायमेंशन देने के लिए यहाँ पे कई बार मल्टीपल एजेस भी हो सकते हैं। इट माइट हैव बीन अ स्लांटेड ऑब्जेक्ट। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? दो दिस वाज अ वर्टिकल एज, यहाँ पे ये सरफेस वर्टिकल है, कई बार स्लांटेड भी हो सकती है। सो यू माइट, आप इससे स्पेसिफाई करने के लिए एक रेफरेंस क्रिएट कर लेते हो। रेफरेंस देखो क्रिएट कहाँ हुआ है कि ये लाइन से ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, ये 5 स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, वो तो फिर हम उसके एज से भी कर सकते थे स्पेसिफाई। वही मैं कह रहा हूँ कि बाय चांस एज्यूम कर लो कि ये वाला सरफेस जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये स्लांटेड होता, तो फिर आपको पता नहीं लगता कि आपने इस एज से स्पेसिफाई किया है कि इस एज से। अगर ये बाहर को स्लांटेड होता, सो समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट। बट आप रेफरेंस अगर स्पेसिफाई कर दोगे तो आपको क्लैरिटी रहती है कहाँ से आपने स्पेसिफाई किया सर। सर मिनिमम नंबर ऑफ एक्सट्रूड्स में करना क्यों इम्पोर्टेंट है इस फिगर को, मतलब किसी भी फिगर को 3D में? क्योंकि आप अपने मॉडल ट्री को जितना छोटा होगा उतना अच्छा रख सकते हो, मतलब उतना बेटर माना जाता है एफिशिएंसी पर्पसेस के लिए। ये बड़े सिंपल कंपोनेंट्स हैं। कल को एक आप कार डिजाइन करने जाओगे, लेट अस अज्यूम इफ यू गो फॉर दी लाइक शीट मेटल का उसका बोनेट डिजाइन करने जा रहे हो, इट वुड बी बेटर दैट यू कैन कंप्लीट इट इन एज मिनिमल स्टेप्स एज पॉसिबल। जितने ज्यादा लोगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, उतने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनते रहेंगे। सो आप उस चीज को अवॉइड करना चाहते हो। क्योंकि मैंने अभी जैसे सेकंड पार्ट कंस्ट्रक्ट किया है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया है? फर्स्ट के रेफरेंस से किया है। जी सर। तो बाद में जाके अगर फर्स्ट में कुछ मॉडिफिकेशन की, सारी ज्योमेट्री हिल जाएगी। सो आपकी जो इवैल्यूएशन भी होती है ना, उसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि आपने मिनिमल नंबर ऑफ स्टेप्स में किया है कि नहीं। दैट्स व्हाई अगर ट्यूटोरियल शीट में देखोगे हमने फोर्स किया है। आई विल बी लाइक यूजिंग द वर्ड, वी आर फोर्सिंग यू टू डू दिस इन 2 steps. Likewise, we will be forcing you to do this in 3 steps. We just want 2 extrudes and 1 extrude cut. ठीक है, सो ये इस चीज का ध्यान रखना है। सो कमिंग बैक टू दिस, वन सर जो थिंग सेकंड इज, क्वेश्चन है उसमें 3 एक्सट्रूड से करना है ना, मतलब तीनों के हाँ, लिए हर लेयर के लिए एक एक एक्सट्रूड लगा सकते हैं? यस यू कैन डू इट विद 3। ओके सर। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, somebody might have a doubt कि सर यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो कुछ डिफरेंट लग रही है in comparison to this one। मैं अगर स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन पे देखूं, do you have this sort of a like feeling कि नहीं? It is because आपका जो व्यू यहाँ पे हमने यूज किया है, that is an isometric view for giving you, like when you are giving you the question, वो isometric view है। यहाँ पे ये trimetric view है। So you can basically go and change it out as well if required. We do not recommend it, but just letting you know that there is an option which you can like use to change this view to isometric from trimetric. So you go to this option of file, you have this icon of options. यहाँ पे मॉडल डिस्प्ले करके एक ऑप्शन होती है जहाँ पे डिफॉल्ट मॉडल ओरिएंटेशन फिलहाल ट्राइमेट्रिक है। सो लेट्स से आई वुड, व्हाट आई विल डू इज इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। So I'll change this to isometric. ठीक है, I'll click on isometric and I'll apply.
ओके करके यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, एक मिनट, सॉरी, and applied here. So let's apply it. So now can you see कि यहाँ पे ये मॉडल और अब ये मॉडल, इनकी ओरिएंटेशन अब सेम लग रही है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन आइसोमेट्रिक व्यू. ठीक है, इसको अगर आइसोमेट्रिक से दोबारा ट्राइमेट्रिक करें, यू कैन अप्लाई इट एंड यू कैन सी वो चेंज हो जाता है. बट वी प्रेफर लाइक ट्राइमेट्रिक, but is again a matter of convenience. If you want, you can go for isometric as well. I prefer the trimetric one. मुझे easy लगता है, इसमें planes का orientation समझना मुझे आसान लगता है थोड़ा. So you can click OK and then you can set it up. ठीक है, I'll prefer the trimetric one. So this is how we complete this particular question. Now just wait a second. इसमें okay. So now coming back to yesterday's question, जहाँ आयुष पूछ रहा था उसका पार्ट सेव नहीं हो रहा. I clicked on save 3 times and you can see 3 different like अभी 2 बार क्लिक हो गया. मैंने 2:1 पे पहली बार क्लिक किया था सेव जब फर्स्ट कंपोनेंट बना था, और अभी 2:14 हो रहे हैं उस टाइम पे क्लिक किया है. So आयुष, we basically can save the part. I'm not sure why you like not able to do it. सेव हो जाता है. ठीक है, नहीं सर, जैसे आप बीच बीच में करते हो ना सेव सर, वैसे नहीं होता. अगर पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद ही जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तब हो जाता है. say we keep it here. So you have 3 Ayush files here. Let's click save. We get a 4th one. Let's click save. We get a 5th one. Let's click save. We get a 6th one. ऐसे नहीं होता आपका? नहीं सर, मतलब जैसे सपोज करो सर, आप इस क्वेश्चन में 2 एक्सट्रूड्स हैं. जी. आपने एक एक्सट्रूड बना दिया और जी. फिर आपने सेव पे क्लिक करा, हाँ, तो उस केस में लिखा आता है कुछ मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कि आयुष हैज बीन सेव, तो उसमें लिखेगा S2D001 या S2D004 हैज बीन सेव. नहीं, क्योंकि फिर आपने सेव जब फाइल नेमिंग स्टार्ट की होगी वहाँ पे फाइल नेम सेव नहीं किया होगा ना. स्टार्टिंग में फाइल का नेम डिफाइन किया कि नहीं? या यू सर कैन किया चेंज था द सर. फाइल नेम. यहाँ पे आके सेव एज की ऑप्शन होती है. यू कैन सेव अ कॉपी. So यहाँ पे let's say instead of Ayush, I now say Akash. ठीक है, and click on OK. So you get Akash here. ओके So सर. you can do it. मतलब मुझे समझ Okay, sir. कभी लैब में आ जाना, वहाँ पे टाइम ज़्यादा होता है. We can like discuss there. I can share your screen and get a better idea कि क्या हो रहा है. ठीक है. ओके सर. So moving to the second question now. Now, second question, we need to do it in 3 steps. There has to be 2 extrudes and 1 extrude cut. But I again want the answer. Point 1. कौन से प्लेन पे कंस्ट्रक्शन करेंगे और क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे सबसे पहले? टॉप व्यू पे करना चाहिए मेरे हिसाब से, और सबसे बॉटम नीचे वाला वाला कंस्ट्रक्शन. हाँ, सबसे नीचे वाला. पहले ये बताओ 2 एक्सट्रूड्स कौन से हैं? सर नीचे वाला सर एक तो राइट प्लेन की तरफ से 30. complete होगा. 80 by 100 का एक रेक्टेंगल है जिसको एक्सट्रूड किया जाएगा टॉप प्लेन पे. कहां तक करें? 30. 30. Okay. So what's the second extrude then? सर ये जो ऊपर का सेमी सर्कल, मतलब क्वार्टर सर्कल. सर कुछ भी कर सकते हो 60 तक करके. अगर आपको एक्सट्रूड हटाने वाला करना है तो वो कर लो, अगर बिल्ड करने वाला करना है तो 30 तक कर लो. स्टेप 3 ही रखने, 2 एक्सट्रूड्स और 1 एक्सट्रूड कट. कुछ नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से इमेजिन करके फिर बताओ. 80 by 100 को 30 तक कर दिया. What next? And why? 60 वाला एक्सट्रूड करेंगे फिर. कहाँ से? फ्रॉम बेस से हम 60 तक एक्सट्रूड करेंगे. क्यों? सर फिर वो बन जाएगा ना जो 20 सेमी सर्कल और वो 25 वाला. तो ये फिर वो इसी बन सरफेस जाएगा. से कर देते हैं. अगर इस सरफेस से करें तो क्या होगा? नीचे से क्यों सर कर रहे हैं? क्योंकि वो लिखा हुआ है ना रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्लस एक्सट्रूड 60 डेप्थ फ्रॉम बेस. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? क्यों कह रहे हैं कि ये 60 डेप्थ फ्रॉम बेस? क्योंकि सर हमने जो बेस वाला लिया होगा, जैसे हमने टॉप प्लेन लिया है तो उस टॉप प्लेन से बेस से लेकर चलना है 60. अगर हम टॉप पे कर देंगे तो 30 एक्सट्रूड हो जाएगा. हाँ, बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी फाइनल डायमेंशन में 60 दिखे. सो यू विल बी बेसिकली एक्सट्रूडिंग फ्रॉम द बॉटम. ठीक है, यहाँ से एक्सट्रूड होके ऊपर आएगा. तो अब थर्ड क्या होगा? फिर थर्ड स्टेप क्या है?
सर जो सर रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उस पे हम प्लेन ले लेंगे एक एक्स्ट्रा, फिर हाँ। उससे एक 15 मिलीमीटर नीचे को एक्सट्रूड कर देंगे, जिससे हमारा मटेरियल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स सर क्या होगा, पहले क्या बनेगा फिर क्या, मतलब पहले एक्सट्रूड, लाइक एक्सट्रूड कट एक्सट्रूड, या कट एक्सट्रूड एक्सट्रूड, या एक्सट्रूड एक्सट्रूड कट, क्या करेंगे? सर एक्सट्रूड कट एक्सट्रूड एक्सट्रूड कट फिर एक्सट्रूड। क्यों? सर क्योंकि जो सेकंड एक्सट्रूड है उस पे 30 सर का 30 डायमेंशन सेंटीमीटर सर चाहिए 30 का बिल्कुल डायमेंशन हमको वो from करेक्ट। कट से चाहिए। ठीक है, सो ये अगर सबको समझ आ गया, आई विल बी अ लिटिल क्विक। ठीक है, इजी है, बस यही पार्ट समझाना होता है कि ये नीचे से लेके आ रहे हैं। अगर किसी को ये डाउट आता है कि सर यहाँ पे ये पार्ट बन जाएगा 80/100/30 का, और आप फिर से नीचे से 60 वाला एक्सट्रूड, ये वाली फिगर ऊपर एक्सट्रूड करोगे, तो यहाँ मटेरियल मर्ज हो जाएगा, ये गलत तो नहीं हो जाएगा? मेरा आंसर है नहीं, ऐसा कोई मटेरियल मर्ज का फंडामेंटल क्रियो के अंदर नहीं होता। रीजन बीइंग इट्स अ सरफेस मॉडलर, वो सिर्फ सरफेसेस का ध्यान रखता है, बीच में दोनों मटेरियल्स का उसको कुछ मतलब ज्यादा इशू है ही नहीं। इट विल जस्ट टेक केयर इनटू अकाउंट द सरफेसेस। ठीक है, सो कोई मटेरियल मर्ज या कुछ नहीं होगा। वी हैवंट डिफाइंड एनी सॉर्ट ऑफ मास प्रॉपर्टीज, वो बाद का स्टोरी है, वहां पे वील सी हाउ टू डील विद इट, बट देयर इज नो इशू ऑफ मटेरियल मिक्सिंग और दीज कंपोनेंट्स गेटिंग मिक्स्ड। So we have 80, 100 and extrude of 30. So we'll take the first extrude. Let's say I delete these two parts. We take the top plane. Okay, we'll go for extrude. We'll go for placement. My sketching plane will be the top plane. My reference is coming out to be the right plane. Or right plane में x को right पे रख रहा है. Not a major concern. I'll take it as right only. ठीक है, मेरा sketching plane अब xz plane है और x right पे रहेगा. So let's take this one. So x is on right. So यहाँ पे we need an rectangle. I'll take a center rectangle command. So we can just take it out. यहाँ पे दो dimensions हैं. So this is where we need to be careful. ये 100 है, ठीक है, और ये 80 है. This is the only thing that you need to be careful. अगर मैंने x को right पे रखा है तो मैं क्या construct कर रहा हूँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए उसका. So we'll go for this and then you can orient it. So यहाँ पे this is 30 units and then we click on OK. So ये आपका rectangular block बन गया. ये 80 है, ये 100 है, ये 30 है. Now what's the second step? We go for the cut. ठीक है, we need the extrude cut. We'll choose this surface because इस surface के ऊपर यहाँ पे cut है. 25 units की dimension दी हुई है. So we'll go for extrude and I can simply select this surface now. ठीक है, कि इस surface के ऊपर कुछ cut करना है या like adding material, removing material, I'll just go to this surface. Green color में select होती है. You can orient it. Again, I can choose references. मैं reference यहाँ पे ले सकता हूँ, इस edge का, इस edge का, and I can close it. I can take a circle, trim out the extra portions which are not required. And I can join these two lines. अभी वो pink color नहीं आया मेरे पास, open edges थे, ठीक है, अब ये pink हो गया. What else I need is I need a dimension of 25. 25 कहाँ से? Corner से इस vertex का. So I can take this and I can specify 25. So we are done. We just need to click OK and I can give it a standard orientation, but it is getting extruded. It is adding material. What I need to do is I just need to like flip this arrow. इस arrow को flip करो, वो नीचे cut कर देता है उसे. And we can specify the depth. This is 15. And you can also see यहाँ पे ये remove material का option by default active हो गया. जैसे ही मैंने arrow को flip किया, मैंने और कुछ नहीं किया, arrow अपने आप flip किया और वो select हो जाता है. अगर आप चाहो तो आप ना भी करो, अगर मैं इसको deselect कर दूँ, पर अगर इसे select करोगे तभी material remove होगा. So ये 15 units तक हमें material remove करना है and I will click on OK. So ये material आपका remove हो जाता है. Now, what's the third step? The third step is that we need to create this part which is of 60 units. So we'll go to extrude, we'll go to the bottom, placement, define, we'll choose the top plane for sketching. So sketch करने के लिए top plane and the right plane is the reference plane. उसकी x direction में orientation वो बोल रहा है, right direction में. I'll take it as it is, easy for me.
कन्वीनियंट है, ठीक है। नाउ आई नीड रेफरेंसेस, आई गो टू रेफरेंसेस, आई टेक this as a reference, I'll take this as a reference, I'll take this as a reference, I'll also take this circle क्योंकि मुझे यहाँ से ये distance specify करना है 30 का, that's why I made the extrude cut first और उसके बाद extrude करने जा रहा हूँ, ठीक है। So let's close the references, let's go to the line command, and in the line command let's say we start with something like this, we just choose a 3-point arc, avoid some sort of any sort of I would say constraints. Take the 9 and I take an arc. I'm trying to avoid as many constraints as possible, ठीक है? That's the reason कि थोड़ा वो disfigured लग रहा है, but we'll take care of everything. We have 25, we have 20, we have 15, and we have 30. 4 dimensions that we need to specify. So we need to specify this one, we need to specify this one, we need to specify this distance, and we need to specify, which is, yeah, this one. We have some weak dimensions. Weak dimensions क्यों आ रही है? क्योंकि ये यहाँ tangent नहीं है, इसे यहाँ tangent करो, ये यहाँ पे perpendicular करो, ये arc और ये line, ठीक है? What else? यहाँ पे अभी 2 weak dimensions आ रही हैं. We need to make it tangent. We make this and this tangent. अभी भी एक weak dimension आ रही है because we need to make this tangent with this surface. So इसको और इसको tangent कर दो. This is how it should look like. Wait, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई. Wait. We need to make this tangent with this. Let's avoid this one. Okay. थोड़ा वो डिसोरिएंटेड सा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है. Wait. There is this unnecessary line जो तंग कर रही है, कहीं गलती से बन गई. So we'll delete this actually. And what we need to do is just need to make and wait. There is a vertical line. Sorry. Yeah. And we need to make this tangent to this. Yeah, that sounds good. So यहाँ पे अभी we can quickly make 30. I think this is 15. This is sorry 25. So this is how it should look like. ठीक है, सारी dimensions correctly specify हो गई. Now we just click on OK. It is removing the material. Reason being यहाँ पे remove material का option active है. मैं इसको deselect कर देता हूँ. We can go about this and we can specify 60 units. जो यहाँ पे हमको specified है 60. So I'll go back and 60 करके इसको OK कर सकते हो. So this is how your part would look like. ठीक है, कई बार बीच में problem आ जाती है, but I just quickly made some edits और उससे change हो गया. So anyone having any doubts? सर जब वो 30 पहले से ही है तो सर उसके ऊपर तो 30 sir- करना चाहिए ना. Yes, sir. I think the total depth is 60. नहीं, that's what I was telling you कि ये अब अगर आप total depth 60 specify नहीं करोगे, अभी जैसे मैं इस part पे double click करता हूँ. So wait, where is that 60 dimension? Yeah, ये 60 देख रहे हो? ये 60 मेरे को दिखाना है ड्राइंग में, तो इसीलिए मैंने नीचे से एक्सट्रूड किया है.
अगर ये 60 नहीं दिखाना होता और ये 30 दिखाना होता इस वर्टेक्स से, तो मैं 30 यहाँ से, ये इसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ से करता. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड अर्लियर कि सेकंड एक्सट्रूड कैसे करोगे. ये नीचे से ही बना के लाना पड़ेगा, तभी आपको 60 दिखेगा. तभी मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि चाहे आपको देखने में लग रहा हो कि मटेरियल बीच में से होके आ रहा है, देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ मर्जिंग और एन इशू हैपनिंग, ऐसा कुछ नहीं होता. इट इज अ सरफेस मॉडलर. इट विल टेक केयर इनटू अकाउंट ऑल द सर्फेसेस. तो इसको ये सरफेस दिख रही है, वो उसके साथ ही अपनी सारी सीए एनालिसिस, असेंबलीज, एवरीथिंग विल बी डन ऑन द सरफेस. ठीक है, तो कोई इंटरफेरेंस का स्कोप नहीं है इसमें, ये सरफेस मॉडलर है. सर तो बेसिकली सर ये जो ऑरेंज वाला सर जो पार्ट है सर, ये सर जो है इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के नीचे से होते हुए आ रहा है सर, इसलिए हमने बट 60 देखो की वो तरह- दिखा नहीं रहा, फिर भी वो बाहर का ही दिखा रहा है जो सरफेस है, बट वो आ Okay. नीचे से रहा है. मैंने नीचे का प्लेन लिया था, तभी 60 वहां से आ रहा है. Sure, sir. ठीक है, सो दैट्स द लाइक ट्रिक इन द क्वेश्चन कि ये 60 कैसे स्पेसिफाई करते हैं. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम द बॉटम मोस्ट प्लेन. जहां से 30 का एक्सट्रूड लिया था वहीं से 60 का लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं आएगी 60 के डायमेंशन. ये 60 की डायमेंशन शो करने के लिए मैंने नीचे से कंस्ट्रक्शन की है, यहाँ से टॉप प्लेन से. ठीक है, ऑलराइट, आई थिंक इट्स 2:30. वी नीड टू एंड द सेशन. तो स्टार्टिंग में रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था वो टॉप प्लेन से ही था. जस्ट वन सेकंड, अभी 2:35 तक है, 5 मिनट. हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो मैं पूछ रहा था कि जो हमने स्टार्टिंग में रेक्टेंगल ड्रॉ किया था सबसे पहले इस क्वेश्चन में, वो हमने टॉप प्लेन से ड्रॉ किया था. हाँ, फर्स्ट वाला ये देखते हैं. ये देखो, इसको यहाँ से ओरिएंट कर लो एक बार. लेट्स से वी गो टू स्केच सेक्शन 1. देखो नीचे से कंस्ट्रक्ट किया. ठीक है, और अगर इसको ये थर्ड वाले को देखते हैं, ये कहाँ से कंस्ट्रक्ट किया, ये भी नीचे से ही है. देखो, पर जो दूसरे वाला एक्सट्रूड था वो कहाँ से किया था, वो सरफेस से किया था, क्योंकि उसको वहां से करने में फायदा था. वो देखो, वो इस सरफेस से किया था. डिफरेंस देख रहे हो तीन चीजों का. ठीक है, जो फर्स्ट वाला है, आई विल रिपीट सर मतलब आपने जो तीसरा एक्सट्रूड लिया है ना, मतलब वो आपने बिल्कुल बॉटम पे करा था, इसलिए वो 60 लेके नीचे आया है. हाँ जी, अगर- वो तभी अगर हम- 60 दिख रहा है. हाँ, ठीक है, तो ये देखो. अगर आप सेकंड लेयर से करते तो 30 देना पड़ता, अगर डायमेंशन 60 ना होती तो. हाँ, मैं इसको हिडन से भी हटा देता हूँ, तो अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 60 मैंने कहाँ से एक्सट्रूड किया. ठीक है, वो नीचे से लिया है, तभी 60 दिखेगा, नहीं तो ये डायमेंशन ऑफ 60 विल नेवर बी विजिबल टू यू. So the purpose of the question is to like let you know that you can do it. ये बीच में अगर यहाँ पे एक चीज कंस्ट्रक्टेड है, हम उसमें से भी कुछ कंस्ट्रक्ट करके ऊपर आ सकते हैं. It does not matter because it is a surface modeler. It will just take care into account all the surfaces that have been created on other surfaces. ठीक है, there are no mass properties involved here. So there will be no nothing of interference. ठीक है, so any more doubts? सर सर क्वेश्चन 3 and 4 में जो आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया और जो फ्रंट व्यू दिखाया वो डिफरेंट डेटम फॉलो कर रहा है. सर हम क्या यूज करें? आप वो बनाओ जो यहाँ पे, जब मैं स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन क्लिक करूँ मेरे को ऐसा दिखना चाहिए. ओके सर, तो जो इसमें फ्रंट व्यू लिखा है वो फॉलो ना करें. ना करो फॉलो. मैं जब फाइनली Okay, आके, सर अगले क्वेश्चन में भी राइट. हाँ, मैं ऐसा देखना चाहता हूँ जब ये ओरिएंट होके आए तो ये इस तरह से दिखे. ओके सर, ओके. सेम फॉर दिस वन. सो अगले में भी फ्रंट व्यू वो डिफरेंट दिखा रहा था इसलिए. करने दो उसे, कोई बात नहीं. वी वांट Okay, sir. दिस सॉर्ट ऑफ अ फिगर व्हेन यू क्लिक ऑन स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन. रीजन बीइंग, उससे ये फायदा होता है, हम आपको प्लेन सिलेक्शन, रेफरेंस ओरिएंटेशन समझा रहे हैं. ओके. ठीक है, तो Thank you, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे हो रहा है. ऑलराइट, एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? यस सर, एक डाउट था. सेकंड क्वेश्चन में सर आपने जो थर्ड एक्सट्रूड है उसके लिए प्लेन सिलेक्ट कैसे किया था सर? प्लेन सिलेक्ट जैसे नहीं, जैसे अगर मान लो हमारे पास 60 सेंटीमीटर वाला वो जो 60 यूनिट्स का हमारे पास कंस्ट्रेंट ना होता वहाँ पे, और मैं मिडल से ही उसको एक्सट्रूड करना था ऊपर, तो वो टॉप व्यू में तो सरफेस से सेम. करता फिर मैं. अच्छा, तो लेट्स से मैं इस सरफेस पे कुछ बनाना चाहूँ, मैंने एक्सट्रूड प्रेस किया ऊपर से, आई प्रेस ऑन एक्सट्रूड. लेट्स से इस सरफेस पे मुझे कुछ बनाना है, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस सरफेस. ठीक है, लेट्स से मेरे को एक शाफ्ट बनानी है यहाँ पे, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड आई क्लिक ऑन ओके. यू कैन क्रिएट अ शाफ्ट. तो वो इसी सरफेस से बन गया. यस So you can simply select surfaces as well. Let's say
you want something to be constructed on this edge, this surface. मैंने extrude sir. press करके इस surface को press किया. Let's say I draw a circle here. I click on OK. Okay. So आप surfaces के ऊपर construction कर सकते हो. मैंने इस surface को choose करके तो extrude cut किया था. ठीक है? So Yes, it's sir. possible. You can do it. Okay. Anything else? No, sir. All right. ठीक है. So I'll end the session and tomorrow we'll take example 3. We'll learn about holes. अभी तक हमने holes नहीं discuss किए. ये hole है, मतलब एक feature है जो यहाँ पे basically आपको demonstrate किया जाता है. मैंने पहले भी बताया था, geometries इन 3-4 चीजों से बनाई जाती हैं. This is a geometry what I created. These are features, engineering features. Hole बनाना, draft, shell, rib, chamfer. ये यहाँ की अलग palette है. इसको हम कल study करेंगे इस example के साथ and also with this example. So we'll take example 3 and 4 tomorrow. ठीक है? So I'll upload the session. You can check it out. फिर होल वाला तो ऐसे भी बना सकते हैं ना, या सर्कल ड्रॉ कर दे और एक्सट्रूड कर दे. वो extrude cut गिना जाता है. What I did here was extrude cut. जब ये portion create किया था, यहाँ पे कर सकते हो, but we have mentioned that you should create this hole and this hole using the hole command. So question में you can do an extrude cut, but I'm like forcing you to like use the hole command. ओके सर. All right then. ठीक है. Then I'll end the session. Thank you, sir.